Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today it's your English literature turn, so we will read today English literature in our today's class. Students, today we are going to start a new chapter of our English literature book as Shastra. Students, the number of this new chapter is chapter 5. The name of this chapter 5 is Around the World in Pancakes. Okay, so students, today we will read chapter 5 Around the World in Pancakes, and included this chapter 5 Around the World in Pancakes, we will read first, second and third stanzas, which is page number 39 of this chapter 5 in our today's class. And then we will read and note down 20 hard words of the chapter 5 Around the World in Pancakes in our Fad English Literature notebook. Okay, so all students, please press partial attention to class and listen to my words clearly, because today we are going to read first, second and third stanzas, which is page number 39 of this chapter 5 in our today's class. And we will also read and note down 20 hard words of the chapter 5 in our Fad English Literature notebook. Okay, so all students, let's see chapter 5. Student, the name of this chapter 5 is Around the World in Pancakes. Around the world in, it's mean दुनिया भर में, pancakes means pancakes. Around the world in pancakes, it's mean दुनिया भर में pancakes. Student, this chapter 5 Around the World in Pancakes is related to art and culture. Okay, तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर 5 है ना, अराउंड द वर्ल्ड इन पेनकेक्स, इट्स मीन दुनिया भर में पेनकेक्स, ये आर्ट और कल्चर से रिलेटेड है. आर्ट मीन्स होते हैं कला, एंड मीन्स और कल्चर मीन्स संस्कृति. ओके, तो अराउंड द वर्ल्ड इन पेनकेक्स चैप्टर 5 जो है ये कला और संस्कृति से संबंधित है. ओके, सो स्टूडेंट्स, टर्न पेज फॉरवर्ड, लुक एट दिस पेज नंबर 39. लेट्स सी स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज रिलेटेड also the kitchenette. Okay, students, have the meaning of that kitchenette, that रसोई घर. Okay, students, the author of this chapter 5 Around the World in Pancakes is सिद्धार्थ मेहता. सिद्धार्थ मेहता ये जो चैप्टर 5 है अराउंड द वर्ल्ड इन पेनकेक्स, इट्स मीन दुनिया भर में पेनकेक्स, इसके ऑथर है, लेखक है. ओके, तो बाई सिद्धार्थ मेहता, इट्स मीन सिद्धार्थ मेहता के द्वारा लिखा गया है. Let's see first number stanza of this chapter 5 Around the World in Pancakes. Okay, people all over the world have at least one thing in common. It is something we all have to do in order to survive, something we usually do about 3 times a day. The answer of course is eating. Okay, तो स्टूडेंट्स, दुनिया के सभी लोगों में एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, जो समान है. ओके, ये कॉमन चीज़ वह है जो हमें करनी पड़ती. ओके, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. और ये कॉमन चीज़ है जो हम एक दिन में अक्सर 3 बार करते. ओके, अंडरस्टैंड, द आंसर ऑफ कोर्स इज ईटिंग. और आपका आंसर क्या है? ईटिंग है, खाना खाना. ओके, राइट, ईटिंग ही है वही चीज़ जो हम वन डे में 3 टाइम्स करते. एक दिन में अक्सर हम 3 बार खाना खाते. ओके, अंडरस्टैंड सर, दुनिया के सभी लोग जिंदा रहने के लिए ओके खाना अवश्य खाते. ओके, सर्वाइव करने के लिए खाना खाते. इफ़ यू डिड नॉट ईट यू विल डाई. अगर आप खाना नहीं खाते ना तो आप मर जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो आप किसी भी देश के रहने वाले हो, महादेश के रहने वाले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए तो ये आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी, ईटिंग करना, खाना खाना. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सेकंड नंबर स्टैंडर्ड ऑफ दिस चैप्टर. If you think about all the different cultures in the world today, it is easy to see that there is one characteristic that is common to all: the act of people cooking and coming together for a meal. Okay, तो स्टूडेंट्स कि आप ना इस दुनिया के, इस विश्व के किसी भी देश के रहने वाले हो, किसी भी महादेश के रहने वाले हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, ये हर विश्व के हर कोने में ये कॉमन चीज़ है, हर कंट्री की कॉमन चीज़ है, खाना खाना, ईटिंग करना. ओके, और यदि आज आप दुनिया के सभी अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो आपको दिखाई देता है कि ये एक ऐसी विशेषता है. ओके, एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो सभी संस्कृति में कॉमन है. ओके, सभी कल्चर में समान है. लोगों का खाने पकाने का तरीका, लोगों का खाना बनाना और खाना खाने के लिए मिलकर एक साथ आना समान होता है. ओके, सामान्य चीज़ें कि मतलब खाना बनाना और एक साथ खाना खाना. ओके, अंडरस्टैंड. से हमारे यहाँ भी कोई भी दावत होती है, पार्टी वगैरह होती है, सेरेमनी हो गई, मैरिज हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, तो हमारी जो कमेटी होती है ना, वो एक साथ फूड को एंजॉय करती है, एक साथ ईटिंग करती है, एक साथ खाना खाती है ना. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं आप. ओके, किसी भी कंट्री के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, तो ये कॉमन चीज़ है, ईटिंग करना, खाना खाना. ओके, and students, let's see next. Regardless of where people stay in climates cold and warm on every continent, the one room that all homes have is the kitchen. Okay, so students, regardless. Okay, regardless of where people stay. Okay, तो स्टूडेंट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग किस तरह के वातावरण के रहने वाले, ओके किस तरह के क्लाइमेट में रहते, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे ठंडे मौसम में रहते हैं या गर्म मौसम में रहते हैं. ओके, और
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ के रहने वाले, किस कंट्री के रहने वाले, हर एक महादेश, ओके, हर एक कॉन्टिनेंट्स, ओके, एंड स्टूडेंट्स हियर द मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स दैट महादेश, ओके स्टूडेंट्स 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ओके, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है, महादेश है, ओके, तो इन सारे कॉन्टिनेंट्स में, ओके, तो इन सारे कॉन्टिनेंट्स में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी घर हैं, उन घरों में, उन बिल्डिंग्स में एक ऐसा कमरा होता है जो कॉमन होता है, और ये कमरा वही होता है जिसे हम किचन बोलते हैं। किचन मीन्स रसोई घर, ओके। तो स्टूडेंट्स सभी के घरों में किचन होता है, क्लियर ना, ओके, सभी घरों में किचन है ना। तो स्टूडेंट्स इसलिए जो ये जो कुकिंग है ना, कुकिंग या फूड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ओके। एंड स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट, दिस इज़ बिकॉज कुकिंग और रेदर फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वॉट ब्रिंग्स एंड कीप्स पीपल टुगेदर, ओके। तो इसलिए ये जो कुकिंग है, ओके, खाना पकाना है, फूड है, खाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है, ओके, लोगों को एक साथ लाने के लिए, लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए, ओके। एंड स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट, एंड although there are many differences between the people and their kitchens in different parts of the world, there is one culinary item that is common to all, and it is so simple that the answer generally escapes everyone. Any guesses? Okay, it's mean कि students ये जो फूड है ना, बहुत ही कॉमन चीज़ है, ओके, सभी लोग ईटिंग करते हैं, और जो किचन है ना, तो उनमें बहुत सारी विविधताएं होती, बहुत सारी अंतर होता है। हो सकता है कि इंडिया की किचन्स कुछ अलग टाइप्स की, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बोल सकते हैं, या अफ्रीका की किचन्स जो होती है, उन लोगों की जो किचन्स होती है वो कुछ अलग डिज़ाइन की होती है, ओके, लेकिन सब किचन सबके घर पे होती है, ओके, सबके बिल्डिंग में होती है, लेकिन स्टूडेंट्स किचन सबके पास होती है। और ये जो कुलिनरी है, ओके, हियर द मीनिंग ऑफ कुलिनरी स्टूडेंट्स आइटम इज रिलेटेड टू कुकिंग और फूड, ओके, एक ऐसा आइटम, एक ऐसी वस्तु जो कुकिंग या फूड से रिलेटेड होती है, ओके, खाना बनाने से या खाने से संबंधित होते हैं, उसे बोलते हैं हम कुलिनरी, ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो कुलिनरी होती है ना, तो ये जो कुलिनरी है वो सभी लोगों में, सभी संस्कृति में कॉमन होती है, और ये इतना साधारण होता है कि लोगों के दिमाग से निकल जाता है, ओके। अब ऑथर सिद्धार्थ मेहता कहते हैं कि क्या आप आइडिया लगा सकते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस कुलिनरी आइटम या किस फूड आइटम के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो कुछ लोग कह सकते हैं ब्रेड, ओके, तो स्टूडेंट्स ब्रेड सम में से, ओके, तो कुछ लोग ब्रेड बोल सकते हैं, बट बिफोर ब्रेड, लेकिन ब्रेड से पहले देयर वाज समथिंग इवन सिंपलर एंड आर्गुएबली इवन टेस्टलियर, ओके, लेकिन ब्रेड से भी पहले एक ऐसी चीज़ है, ओके, जो मतलब ब्रेड से पहले और ब्रेड से मतलब ज़्यादा सिंपल है, ओके, बट ब्रेड से ज़्यादा साधारण है, ओके, और बहुत ही साधारण है, काफ़ी सादी है, और स्वाद में भी ब्रेड से भी ज़्यादा अच्छी है, ओके। And stands the humble pancake surprising is not it, okay, it stands the humble, okay, stand here the meaning of humble that modest, okay, it's mean कि बोल सकते हैं कि सिंपल, साधारण pancake, okay, तो here the meaning of humble that modest, it's mean सिंपल या साधारण, okay, तो the humble pancake it's mean कि साधारण pancakes, okay, surprising is not it, okay, it's mean कि हो सकता है कि आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग हो, ओके, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आश्चर्यजनक हो पैनकेक्स, ओके, अंडरस्टैंड सो, बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं ना, तो ये जो पैनकेक्स है ना, ये जो हमारा आंसर है पैनकेक्स, ओके, तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आपके लिए सरप्राइजिंग हो, आश्चर्यजनक हो, लेकिन यदि आप इसके बारे में सोचते हैं ना, ओके, तो बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, नथिंग कुड बी एज ईजली मेड, easily consumed and universally enjoyed as the pancake, okay students, here the meaning of consumed, here the meaning of consumed that eaten, okay, it's mean खाना, okay, and students यदि आप इसके बारे में सोचते हैं ना, तो students nothing could be as easily, okay, इससे ज़्यादा कोई nothing could be as easily made, इससे भी ज़्यादा, केक से भी ज़्यादा कोई चीज़ आसानी से नहीं बनाई जा सकती, ईजली कंज्यूम्ड इट्स मीन कि आसानी से खाई नहीं जा सकती, एंड यूनिवर्सली इन्जॉयड, और यूनिवर्सली इट्स मीन कि ग्लोबली इन्जॉय नहीं किया जा सकता, आनंद नहीं लिया जा सकता एज अ पेनकेक्स, एक पेनकेक्स की तरह, ओके। तो स्टूडेंट्स ब्रेड ठीक है कि ब्रेड कॉमन होता है, कि हर जगह मिल जाता है, ओके, और हर जगह मोस्टली खाया जाता है, बट स्टूडेंट्स ब्रेड से भी पहले एक चीज़ होती है, वो होता है पैनकेक्स, और स्टूडेंट्स पैनकेक्स एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेड से भी ज़्यादा टेस्टी और साधारण चीज़ होती है, ओके, और हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते इन पे, इन चीज़ों पे,
और स्टूडेंट्स लेकिन अगर आप इनके बारे में सोचते हो ना तो स्टूडेंट्स केक से ज़्यादा, पेन केक से ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा उसे ईजिली मेड किया जा सके, बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनाया जा सकते पेन केक्स के कंपेयर में। ओके, तो पेन केक्स से ज़्यादा कोई भी चीज़ आसानी से नहीं बनाई जा सकती, आसानी से नहीं खाई जाती, आसानी से नहीं खाई जा सकती और ना ही उसे यूनिवर्सली इंजॉय किया जा सकता है, ग्लोबली आनंद लिया जा सकता है उसका। ओके, तो स्टूडेंट्स वी हैव रीड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टैंजास of this chapter 5 and I hope you must have understood these stanzas of this chapter 5. You have no problem in any stanzas which we have read in our today's class of this chapter 5. Okay, students, we will read next stanzas of this chapter 5 in our next video. Okay, now we are going to read and note down hard words of this chapter 5 in our FAD English Literature notebook. Okay, students, let's see. The name of this chapter 5 is Around the World in Pancakes. It's been Dunia Bhar mein Pancakes. Okay, students, let's see hard words. Hard word, it's been Kathin Sabd. Students, the first number hard word is characteristics. Okay, CHARACTERISTIC. Okay, characteristic. Okay, students, the second number hard word is regardless. REGARDLESS, regardless. Okay, students, the third number hard word is continents. Content, CONTINENT, content. And students, the fourth number hard word is culinary, CULINARY, culinary. And students, your five number hard word is surprising, SURPRISING, surprising. And students, your six number hard word is universally, UNIVERSALLY, universally. And students, your seven number hard word is consumed, 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 it's been eaten. Okay, and students, your eight number hard word is environment. Okay, ENVIRONMENT, environment. And students, your nine number hard word is ingredients, INGREDIENTS, ingredients. And students, your 10 number hard word is techniques, TECHNIQUES, techniques. And students, your 11 number hard word is Venezuela, VENEZUELA, Venezuela. And students, your 10 number hard word is Ethiopia, ETHIOPIA, Ethiopia. And students, your 30 number hard word is smoothend, SMOOTHENED, smoothend. And students, your 40 number hard word is simplicity. Okay, CIMPLICITY, by simplicity. And students, your 5 number hard word is affordable, AFFORDABLE, affordable. And students, your 16 number hard word is substantially, SUBSTANTIALLY, substantially. And students, your 17 number hard word is accompanied, ACCOMPANIED, accompanied. And students, your 18 number hard word is additionally, ADDITIONALLY, additionally. And students, your 19 number hard word is Central Europe, CENTRAL, Central, EUROPE, Europe. Okay, and since the last 18 number hard word of this chapter 5 is guaranteed. Okay, GUARANTEED, guaranteed. Okay, GUARANTEED, clear? So students, we have read and note down these hard words of the chapter 5 Around the World in Pancakes in our FAR English Literature notebook. And students, I hope you must have also understood these hard words of the chapter 5. You have no problem in any hard words of the chapter 5. Okay, so students, today's class work is that note down these hard words of the chapter 5 Around the World in Pancakes in your FAR English Literature notebook with your best handwriting. It's a today's class work. And students, your homework is that read this chapter, read first, second and third stanzas of this chapter 5 from your English literature book as well as the, and try to find out the summary of these stanzas of this chapter 5. Okay, so students, I hope you must have understood these stanzas. You have no problem in your homework because students, I have explained summary of these first, second and third stanzas of this chapter 5. Okay, so all students, firstly complete your classwork, note down hard words of the chapter 5 Around the World in Pancakes in your FAR English Literature notebook with your best handwriting and send me your work here. Thank you.